Assalamu alaikum students and welcome back to 9th class mathematics class. Today we will solve the first exercise of chapter 1. The chapter name is matrices and determinants. We will explain the exercise fully and we will solve question 1, 2 and 3. First question of the exercise 1.1 is find the order of the following matrices. In our previous lecture, we have totally explained what the matrices are and how to find its order. So reminding it, how to find the order? First of all, we have to look for the rows and columns. हमें rows और column देखने होते हैं. जितनी number of rows हो और जितने number of columns हो वो लिखने होते हैं. अगर हमारे पास rows 2 हैं, column 3 है, तो हम कहेंगे कि matrix 2 by 3 का है. Rows should be placed first and the number of columns should be placed at the end. रोज का नंबर पहले और कॉलम का नंबर बाद में लिखा जाता है. ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 4 पार्ट्स हैं. अब पहले पार्ट को अगर देखा जाए तो मैंने आपसे कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लुक फॉर द रोज. तो रो अगर हमने देखनी है तो 2. अब हमारे पास बाएं से दाएं कितनी लाइनें नजर आ रही हैं? 2 लाइनें नजर आ रही हैं. तो 2 लाइंस का मीन कि हमारे पास वी आर हैविंग 2 रोज. 2 रोज हैं हमारे पास. और अब हम कॉलम देखें तो ऊपर से नीचे हमारे पास कितनी लाइंस हैं? हमारे पास वो भी 2 लाइंस हैं. तो हम कह सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 बाई 2. 2 बाई 2 क्यों है? क्योंकि ये 2 हमारी रोज को इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास 2 रोज हैं और ये 2 हमारे कॉलम को इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास 2 कॉलम्स हैं. अच्छा, अगले मैट्रिक्स की तरफ आएँ तो दोबारा हम रोज अगर देखें तो 2 0 एक रो बना रही है और 3 5 दूसरी रो बना रही है. तो ये भी हमारी 2 रोज हो जाएंगी. और अगर हम कॉलम को देखें तो 2 3 इज 1 कॉलम एंड 0 5 इज द अदर कॉलम. तो ये हमारे कॉलम भी 2 हो जाएंगे. तो द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स विल बिकम 2 बाई 2 अगेन. सी, लुकिंग एट द नंबर ऑफ रोज, बाएं से दाएं अगर मैं आऊँ तो वी आर हैविंग जस्ट 1 रो. और अगर मैं ऊपर से नीचे आऊँ तो 2 एक अलग से रो बना रही है, 4 एक अलग से लाइन क्रिएट कर रहा है. सो रो वी आर हैविंग 1 बट कॉलम वी आर हैविंग 2. सो ऑर्डर विल बी 1 बाई 2 क्योंकि हमने पहले नंबर ऑफ रोज और दूसरे नंबर पे नंबर ऑफ कॉलम्स लिखने होते हैं. अब अगर हम आए मैट्रिक्स डी पर तो डी में अगर हम रोज को देखें तो 4 इज मेकिंग अ सेपरेट लाइन, 0 इज मेकिंग अ सेपरेट लाइन, 6 इज मेकिंग अ सेपरेट लाइन. 4 0 और 6 तीनों अलग अलग लाइंस बना रहे हैं. तो हमारे पास 1 2 3 रोज हो जाएंगी. एंड इफ वी लुक फॉर द कॉलम तो 4 0 एंड 6 आर रिटन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड दे आर मेकिंग अ स्ट्रेट कॉलम. तो और कॉलम इज 1, rows are 3 and column is 1. So we have to write the order 3 by 1. These 4 are the remaining parts of question number 1. First of all, we have to look for rows. A and D is one row, B and E is the other row, C and F is the third row. So we will first write 3, then we will look for column. A, B, C is the one column, D, E, F is the other column. So we are having 2 columns here. Rows are 3 and columns are 2. So 3 by 2 is this matrix order. F, we are having 1 row here and 1 column here because only 1 digit is written. तो एक digit होने की वजह से हमारे पास एक ही row है और एक ही column बन रहा है. तो the order of matrix will be 1 by 1. G matrix पे अगर आए तो 2 3 0 is making 1 row, 1 2 3 is making another row and 2 4 5 is making another row, which means there are 3 rows. Now looking at the column, 2 1 2 1 column, 3 2 4 second column, 0 3 5 third column. So we are having 3 rows and 3 columns. So we will write 3 by 3 as the order of the matrices. Looking at the matrix AH, the rows 2 3 5 4 is making one row, 1 0 6 is making another row. 2 3 4 से एक row और 1 0 6 से दूसरी row बन रही है. तो we are having 2 rows. Looking at the column, 2 and 1 is making one column, 3 0 another and 4 6 is making the third column. So 2 rows and 3 columns we will write 2 by 3 as the order of this. Coming to question number 2. Question number 2 is which of the following matrices are equal? अब in the previous lecture मैंने आपको पूरी तरह से explain किया कि वो matrices आपस में equal होते हैं जिनके
यस, दे आर हैविंग द सेम ऑर्डर और उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज सेम होनी चाहिए। करस्पॉन्डिंग वैल्यूज का मतलब कि एक ऑर्डर में एक मैट्रिक्स में पहले नंबर पे अगर 3 लिखा है तो दूसरे मैट्रिक्स में पहले नंबर पे 3 ही होना चाहिए। लेकिन अगर दूसरे मैट्रिक्स में 3 की जगह 1 प्लस 2 लिखा है तो वो भी हम इक्वल ही कंसिडर करेंगे क्योंकि 1 प्लस 2 का आंसर 3 ही आता है। ये हमारे क्वेश्चन हैं जो कि हमें बुक में दिए गए हैं। ए हमारा 3 है, बी का ये मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स, डी मैट्रिक्स, ई एफ जी एच आई एन जे। अब A is the simple matrix, B is also the simple matrix, but in matrix C we are having 5 minus 2. 5 minus 2 means 3, so I have simplified it. मैंने उसका solution करके नीचे लिख लिया कि और C matrix is 3. D and E are also the same, F is also the same, लेकिन G में again we have to add or subtract, so 3 minus 1 is 2 and 3 plus 3 is 6. So I have written the matrix G as 2 and 6. H is same, I is 3, 3 will remain the same, but the next entry is 3 plus 2, so 3 plus 2 is 5. J part is 2 plus 2, we have written 4 instead of 2 plus 2, 2 minus 2 is 0, 2 plus 4 is 6 and 2 plus 0 is 2. अब अगर आप देखें पूरे मैट्रिक्स की तरफ तो हमें कौन से मैट्रिसेस सेम नज़र आ रहे हैं। हमारे पास A का मैट्रिक्स 3 है तो हमारे पास C का मैट्रिक्स भी तो आफ्टर सॉल्यूशन 3 बना, तो हमारा फर्स्ट A इज इक्वल टू C हो जाएगा, दैट इज द फर्स्ट सॉल्यूशन। उसके बाद अगर हम B को देखें तो 3 एंड 5, और अगर हम D को देखें तो वो 5 और 3 है, तो क्या 3 और 5 और 5 और 3 इक्वल होंगे। पहले नंबर पे यहाँ 3 है, दूसरे पे 5, जबकि यहाँ पे पहले नंबर पे 5 और दूसरे पे 3 है, तो ये इक्वल नहीं होते। जबकि यहाँ पे अगर हम आई कॉलम की तरफ, आई मैट्रिक्स की तरफ जाएं तो उसके पहले नंबर पे 3 और दूसरे नंबर पे 5 ही है, और यहाँ पे भी हमारा बी में भी और सी आई में भी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज बिल्कुल सेम है, तो हम लिखेंगे b इज इक्वल टू आई। अब आपको समझ आ गई होगी कि बी डी के इक्वल नहीं है, क्योंकि हमारे पहले नंबर पे वही चीज़ होनी चाहिए जो दूसरे मैट्रिक्स के पहले नंबर पे लिखी है। सी को ऑलरेडी हम इक्वल कर चुके हैं, डी की एक्सप्लेनेशन भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम ई को देखते हैं। ई में है 4062, और अगर हम एच में आए तो वो भी 4062 है, और अगर हम जे में जाएं तो वो भी 4062 है। इसका मतलब ई जो है वो एच के भी बराबर है और ई हमारा जी के भी बराबर है, तो वी विल राइट ई इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू जे। अब हमारा कॉलम मैट्रिक्स एफ की तरफ जाएं तो 2 6, और मैट्रिक्स जी को देखें तो हमने जब सोल्यूशन कर लिया तो वो भी 2 6 बना, तो हमारा एफ इज इक्वल टू जी हो जाएगा। एच आई और जे को ऑलरेडी हम मैट्रिक्स के इक्वल कर चुके हैं, तो इस क्वेश्चन का इतना ही सोल्यूशन होगा। Now question number 3. Find the values of A, B, C and D which satisfy the matrix equation. Satisfy matrix equation का मतलब है कि दोनों साइड्स इक्वल प्रूव हो जानी चाहिए। अब हमारे पास लेफ्ट साइड पे पहली एंट्री है A प्लस सी और राइट साइड पे पहली एंट्री है 0, तो इक्वल मैट्रिक्स के को कंसिडर करते हुए हम ये कह सकते हैं कि A प्लस सी 0 के इक्वल होना चाहिए। दूसरी एंट्री हमारी लेफ्ट साइड पर है a प्लस टू बी और राइट साइड पर है -7, तो हम ये कह सकते हैं कि a प्लस टू बी हमारा -7 के इक्वल होगा। तीसरे नंबर पर है c माइनस 1 और यहाँ है 3, तो c माइनस 1 हमारा 3 के इक्वल होगा। ये हम साथ लिखते जाते हैं कि फर्स्ट इज, दोनों की फर्स्ट प्लेसेस हैं a प्लस सी और 0 और बीच में इक्वल का साइन है, हमने फर्स्ट प्लेसेस को एज इट इज लिख दिया। दूसरी प्लेस में हमारे पास a प्लस टू बी, बीच में इक्वल का साइन और -7 है, तो हमने इसे भी लिख दिया। तीसरी प्लेस पे c माइनस 1, बीच में इक्वल का साइन और 3 है, उसे भी लिख दिया। 4d माइनस 6 इक्वल्स टू 2d है, तो हमने उसको भी लिख दिया। अब हमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हमने वैल्यू फाइंड करनी है a, b, c और d की। अब सबसे पहले अगर इन हमारे पास 4 इक्वेशंस बन चुकी हैं, अगर मैं पहली इक्वेशन को लूँ तो उसमें हमारे पास 2 अननोन है, तो 2 अननोन को तो हम सॉल्व नहीं कर सकेंगे शुरू में। दूसरी इक्वेशन को लें तो उसमें भी a और b 2 अननोन है, तो अगेन इसको भी हम सॉल्व नहीं कर सकते।
तीसरी इक्वेशन पे आए तो वहाँ पे सिर्फ एक अननोन है c, और हम देख सकते हैं कि अगर हम -1 को दूसरी साइड पे ले जाएं तो हमारा c का आंसर आ जाएगा. सो सबसे पहले वी विल डू द सॉल्यूशन ऑफ थर्ड इक्वेशन. c is equals to 3 plus 1 and the answer of c will become 4. अब हम ये c का आंसर इस इक्वेशन में यूज कर सकेंगे. अब हम चौथी इक्वेशन देखते हैं. वहाँ भी वी आर हैविंग d वेरिएबल एंड दैट इज अ सिंगल वेरिएबल, नो अदर सेकंड अननोन. तो हम यहाँ भी इसको पहले सॉल्व कर लेंगे. Taking this 2d to the left side of the equation and -6 to the right side, 4d minus 2d would be 2d equals to 6, and if 2 is multiplying with d, so it would divide to the other side. d is equals to 6 by 2, d is equals to 3. ये सिंपल सोल्यूशन होगा हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का. अब हमारे पास c का आंसर भी आ चुका है और d का आंसर भी आ चुका है. तो हम अपनी पहली इक्वेशन की तरफ चलते हैं और यहाँ ये c की जगह हम लिख सकते हैं 4. तो जब हमने लिखा a plus 4 is equals to 0 plus 4, taking to the other side of the equation a is equals to -4. अब हमारे पास 3 आ चुके हैं आंसर्स ए, सी और डी. तो अब हम बी का आंसर देख लेते हैं. बी में हमें ए का आंसर पुट करना होगा. ए की जगह हम डाल देंगे -4 प्लस 2b इक्वल्स टू -7 विल रिमेन द सेम. -4 को हम इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो +4 में चेंज हो जाएगा. -7 प्लस 4 वुड बी इक्वल टू -3. 2b इक्वल्स टू -3 और 2b क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 2b के साथ, तो वी विल टेक इट टू द अदर साइड एज डिवीजन. तो b इज इक्वल्स टू -3/2 वुड बी द फाइनल आंसर. अच्छा,